Hello guys, my name is Tarun Bhagat. Today in this video we will discuss about Byju's Super Select program. We have Mahesh who is going to share his experience and all the questions that the interviewer has asked with him. Okay? So if you want to know more details about Super Select program, I have uploaded few videos regarding that. You can go and check that video. Okay, so in this video I will be asking some questions with my age. So let's start the video. गाइस मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में न्यूटन स्कूल के बारे में बताया था। ये एक ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है जो आपको 6 मंथ में एक इंडस्ट्री रेडी फुल स्टैक डेवलपर बनाने की ट्रेनिंग देता है, वो भी इन जीरो ऑफ फ्रंट फीस। न्यूटन स्कूल हैज़ अ पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग वो तब तक आपसे कोई फीस नहीं लेंगे जब तक कि वो आपकी मिनिमम 5 लाख की सैलरी ना लगवा दें। जब आप न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपर कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो रोज़ मंडे से फ्राइडे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें आपके इंस्ट्रक्टर एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं हु वर्क्स इन बिग एमएनसीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। और ये सेशन रात को होंगे, तो आप साथ साथ अपनी एजुकेशन या जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही नहीं, हर सेशन के बाद एक मेंटर सेशन होता है जिसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट होते हैं। इन सेशन में आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं या कोई भी असाइनमेंट रिलेटेड डिफिकल्टी हो आप अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर की तरह मेंटर भी वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, तो बेसिकली आप काफ़ी टैलेंटेड लोगों से सीखोगे जिन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है। आपको डेली असाइनमेंट और क्विजेस दिए जाएंगे और साथ ही लाइव प्रोजेक्ट्स जैसे ई कॉमर्स क्लोन बनाने और अपनी आइडियाज़ को विजुअलाइज करके एक वर्किंग मॉडल बनाने भी सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, न्यूटन स्कूल का नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। यू कैन अप्लाई फॉर इट फ्रॉम देयर वेबसाइट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। Hello Mahesh. Hi sir, how are you? I'm good. Mahesh, you have been in Super Select program. So like how all these started, like how was your first round and how many activities were there? So can you start briefing out? Sure, sir. So actually, in Super Select program, actually there will be a for me there will be a 5 days activities. Means every day one activity. Okay, means total there will be a 5 days, 5 activities will be there in a Super Select program, sir. Okay, and this Super Select program will be for only experienced people. Okay, not for freshers, I think. Okay, why? Because I have 1 year of experience. That's why I given my first telephonic round, and I given my second Zoom interview. After that, I got a email so that you are handpicked to a Super Select program, and there will be a 5 day activities, and there will be a everyday one activity, and you have to attend that. Okay, means based on this program, we will be deciding you, means you will be BDT or BDA. Why? Because they told me that if you're performing a good, or your performance is good in this program, then you will be become a direct BDA. Okay, that is a main advantage, they said, actually, if we are performing well in this yes, Super Select program, means. Yeah. So first activity में Yes क्या sir, हुआ next था? actually I got, yeah sir, yes. हाँ सर, फर्स्ट एक्टिविटी में ये हुआ था कि मतलब जो पहले वो लोग ईमेल भेजते हैं, तो इतना इतना टाइम आपका एक्टिविटी है, लॉगिन हो जाना है, तो दे सेंड अ ईमेल सो दैट टू रिमाइंड अस. Okay, first day it was actually a brief introduction about first Byju's. Okay, history of Byju's and how Byju's developed. Okay, and what will be roles and responsibilities, BDA, BDT, and salaries. They discussed about the salaries, everything. Okay, and they briefed me about my roles and responsibilities. And after that, they shown actually 3 videos, sir, on K10 products. Actually there will be a 3 products, K3, K10, and K12. K12. They shown only three K10 videos. That is yes, yeah, that is the first the first video will be the product video. Okay, it will be called means what Byju's is offering. Okay, they shown a one video. After that, they shown a second video, that is a customer segmentation.
Okay, and they shown a third video, that is a product pitching, how to pitch the Byju's product according to customer segmentation. Okay, actually they shown three videos, and they said these are the main three videos you have to focus to perform well in upcoming 5 days. Okay, based on that performance only you will be selected at BDA or BDT. Okay, so that they are allowing to you actually means वो मुझे 3 वीडियोस दिखाए थे, तो 3 वीडियो जस्ट एक ही बार प्ले कर देते हैं, दे प्लेड एट ओनली वन टाइम। तो उसके बाद वो हो गया, सब ब्रेक हो गया, उसके बाद तो हम तीनों वीडियो देख लिए, वी सीन ऑल 3 वीडियोस, थोड़ा वो ब्रेक दे देते। उसके बाद हमारा जीडी हुआ था। ओके, वी हैड अ जीडी विद 4 और 5 मेंबर्स। ओके, तो जीडी में टॉपिक कुछ भी पर टॉपिक दे सकते हैं वो लोग, सेल्स के बारे में कुछ भी, वो दे गिवन एनी टॉपिक रिलेटेड टू सेल्स। ओके, तो उसके ऊपर हमें बात करना था जीडी में। तो ये सारे मतलब ये डे 1 एक्टिविटी खत्म हो गया, मतलब आपने सब जीडी भी दे दिया, उसके बाद आपको ईमेल आएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो इफ यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड मींस दे विल सेंड one email so that stating you are shortlisted for further round at night. Okay, at 8:30 or 9 o'clock they will send an email. Okay, according to that means we have to book a slot for further day, means coming day 2. Okay, तो डे 2 में एक्चुअली क्या हुआ था कि डे 2 वाज अ नॉर्मल, एक्चुअली देयर वाज अ नो एक्टिविटी। ओके, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया गया था, मतलब आप मेरा पहले का एक्सपीरियंस। ओके, मैं पहले कहाँ कहाँ काम किया हूँ, तो उधर क्या मुझे चैलेंजेस फेस करना पड़ा, ये मुझे पूछा गया था। और उसके बाद ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मुझे मतलब वो लोग बोलते हैं कि कोई भी एक टॉपिक देते हैं, तो एक टॉपिक के ऊपर आपको 1 मिनट या 4 मिनट बात करना है। तो फॉर एग्जाम्पल योर मीन्स योर हॉबीज एंड योर फेवरेट सिटी, इस दोनों में आपको चूज करना है। तो चूज करके उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको 1 या 4 मिनट बात करना। तो ये डे 2 एक्टिविटी में ये सारे हुआ था। तो डे 2 एक्टिविटी के बाद फिर मुझे शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आ गया, फिर स्लॉट बुक किया। तो थर्ड डे तो वही फिर थर्ड डे भी मेरा एक्टिविटी हुआ था। ठीक है, तो थर्ड डे में और क्या थर्ड हुआ डे था? एक्टिविटी ये हुआ था कि एक्चुअली थर्ड डे एक्टिविटी के बाद, हाँ सर वही मैं बताता हूँ। थर्ड डे के लिए आपको पहले ही स्लॉट बुक करना होता है, तो मतलब आपको उसके पहले रात को ही आपको ईमेल आएगा, तो उधर आप स्लॉट बुकिंग करोगे, तो उस टाइम के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। तो उस टाइम पे आपको कॉल करेंगे, तो आपको जूम का लिंक आएगा, आपको अटेंड करना होगा। तो बाद में थर्ड राउंड में मुझे ये था कि मुझे 2 सिनेरियोस दिया गया था, मतलब वो जो भी फॉर एग्जांपल देख लो, कोई भी एक फादर बिजनेसमैन है, तो उसका बेटा जो है तो उसका पढ़ाई में अच्छा मन नहीं लगता है, तो उसका जो फादर है आईटी इंडस्ट्री में काम करता है। तो इस तरह के आपको एक सिनेरियो दिया हुआ था। तो उस सिनेरियो के लिए फॉर दैट सिनेरियो आई हैव टू बुक अ स्लॉट फॉर कंसल्टेशन। ओके, मतलब जो घर में जो हम बीडीएस जाते हैं, तो उस घर में जाने से पहले, काउंसलिंग करने से पहले हमें एक स्लॉट बुक करना होता है। तो उस स्लॉट हमें बुक करना था उस केस के लिए। ऐसा हमें टोटल 2 सिनेरियोस दिए गए थे। तो उस दोनों सिनेरियो के लिए आपको उस स्लॉट बुक करने के लिए आपको कैसा पिच करना है, वो मुझे उधर मॉक कॉल था। तो जो इंटरव्यूअर है वो आपको पेरेंट्स या बच्चे बनेंगे, मैं सेल्स मतलब बीडी या बीडीटी बनूंगा। तो मुझे सेल्स कॉल देना था, तो स्लॉट बुक करने के लिए घर में जाके काउंसलिंग करने के लिए जो हम एक स्लॉट बुक करते हैं जूम में, या तो एक पेरेंट्स से पूछ के, तो वो मुझे सेल्स पिच, मॉक पिच देना था। तो वो एक्चुअली उस 3 दिन में उतना ही हुआ था, एक सेल्स मॉक कॉल हुआ तो खत्म हो गया। फिर मुझे नेक्स्ट वही रात, उसी दिन रात मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए ईमेल आया था, तो फिर मैंने बस स्लॉट बुक कर दिया तो नेक्स्ट डे के लिए। तो वही हुआ था सर थर्ड डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे में क्या हुआ? नेक्स्ट फोर्थ राउंड में क्या यस हुआ? हाँ नेक्स्ट फोर्थ
और फोर्थ डे और फोर्थ राउंड में ये हुआ था कि मतलब सर मतलब डे 3 में उन्होंने एक पीडीएफ मुझे भेजे थे। तो मतलब उस ईमेल में लिखा गया था कि आप इस पीडीएफ से गो थ्रू कर लो, तो आपको कल इसके रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं उस पीडीएफ से गो थ्रू किया था। जो उस पीडीएफ में क्या क्या रहता है, वही बायजूस का क्या क्या प्रोडक्ट है, K10, K3, K12, उसमें तीनों प्रोडक्ट रहते हैं। तो और आपको जो भी सेल्स पिच होता है, एक मैं कल हुआ था जो कंसल्टेशन स्लॉट बुक करने के लिए एक जो सेल्स पिच होता है, उसका आपको एक स्टैंडर्ड पिच उधर लिखा जाता है पूरा पीडीएफ में। उसको उसके थ्रू आपको गो थ्रू करना है। तो आपको उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाया था मुझे। मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं, 30 सेकंड आपके लिए टाइम है। तो उसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन आपको आंसर करते जाना है। ऐसा मुझे 40 क्वेश्चंस पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट ये थिंग है। तो उसके बाद ये हुआ था। उसके बाद फिर एक्चुअली मेंस मुझे 2 सिनेरियोस दिए गए थे। तो उस मतलब फॉर एग्जांपल अब देखो, एक बंदा मतलब पूरा समवन इज हैवी वेट, ओके, समवन इज हैविंग अ एक्स्ट्रा वेट ऑफ 30 kg एंड हिज मैरिज इज नेक्स्ट ईयर, ओके, एंड ही इज इंटरेस्टेड इन ओनली 6 month gym packages, but we have to convince them for 12 month package. This was a scenario. तो इस सिनारियो के लिए मुझे उसको कन्विंस करना था सेल्स, पूरा सेल्स पिच के लिए। मतलब मैं क्या उधर ऑब्जेक्शन कैसा हैंडल करना है, तो वो सारे हमें वो ऑब्जेक्शन ही देते हैं सारे कुछ। मतलब उसके बाद और एक सिनेरियो था कि तो एक बिजनेसमैन है, मतलब एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली है, फैमिली में 4 मेंबर्स है। तो ग्रोसरी शॉप चलाता है, उसके पास छोटा सा एक बाइक है। तो एक्चुअली वो टेस्ट्रॉय, एक टाटा शोरूम में एक कार का टेस्ट्रॉय देके गया, मतलब लेके गया है। उसका कार का जो प्राइस है 5 लाख है। तो टेस्ट्रॉय वो लेके गया है, मुझे फोन करके उसको आगे प्रोसीड करना है बाई करने के लिए। तो ये 2 सिनेरियो होते हैं सेल्स, मतलब मॉक कॉल के लिए। तो आप बता दो पूरा आपको वो सेल्स पिच था। तो आप इंटरव्यूअर जो है वो मतलब कस्टमर बनता है, तो इंटरव्यू बनते थे। तो मैं सेल्स पर्सन बन के मतलब मॉक कॉल मुझे देना था। तो इस फोर्थ राउंड में ये 2 ये सिनारियो के लिए। फोर्थ राउंड हो गया था। एंड अब लास्ट राउंड में आपके क्या हुआ था? फाइनल हाँ एंड सर, लास्ट लास्ट राउंड। राउंड, हाँ सर, लास्ट राउंड के लिए फिर वही, हाँ, फाइनल के लिए आपको फिर उसी फोर्थ डे नाइट में आपको ईमेल आएगा। तो आपको स्लॉट बुक करना है जो आप टाइम में कंफर्टेबल हो। लेकिन थोड़ा सा ये बहुत टफ राउंड है। आप आई थिंक मतलब जो हमारा बैच से है वो सारे को ये टफ लगा था। मतलब इस राउंड में स्लॉट मैंने बुक किया था, और एक्चुअली तो मैं शाम को स्लॉट बुक किया था। तो इस राउंड स्टार्ट होते ही मुझे वो पूरा टाइम बाउंड था। मतलब इंटरव्यू बोलता है तो आपको एक तरफ एक तरह की आपको ये करना है, प्रायोरिटाइज करना है। मतलब आपको 3 उसको वो पूछेंगे आपको, फर्स्ट आपको कौन सा प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे, K3, K10 या K12 आपको पूछेंगे। तो आपको कौन सा ऐप सिलेक्ट करोगे इस तीनों में? तो आपको तीनों में एक आपको एक सिलेक्ट करना है। सिनेरियो नहीं था सर, वो बस पूछेंगे K3 प्रोडक्ट है, K10 है और K12 है, आप कौन सा चूज करोगे फर्स्ट? वो सिनेरियो नहीं था सर, बस आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो। ओके। तो आपका जो मर्जी आप चूज कर लो। तो उसके बाद आपको 3 सिनेरियोस दिखाया जाएगा। तो वो कैसा रहेगा सर, पूरा टाइम बाउंड रहता है। मतलब कैसा है, इंटरव्यू आपको बोलेगा आपके पास 30 मिनट है। तो आप 30 मिनट के अंदर मतलब मैं आपको जब स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें 3 सिनेरियोस होते हैं। तो उस 3 सिनेरियो को चूज करके आपको क्यों चूज किया, रीजन भी देना है विद इन 30 सेकेंड। ओके। तो अब 30 सेकेंड में आपको तीनों सिनेरियो पढ़ना है और चूज करना है, चूज करने का रीजन भी देना है। तीनों तीनों काम 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए। ये चीज था फर्स्ट एक्टिविटी। ओके। तो फर्स्ट एक्टिविटी हो गया। तो सेकंड एक्टिविटी ये था कि सर मतलब वो पूछते हैं, मतलब जो भी आप जो अभी 4 दिन हुआ है, तो 4 दिन में आपने क्या सीखा। तो उस जो आप सीखे हैं वो आपको टाइप करना है। तो आप जो भी मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला जाता है, और कोई भी आप नोटपैड ओपन करो या वर्ड ओपन करो। तो आप मतलब इस 4 दिन में पूरा 5 दिन में आपने क्या सीखा,
तो आपको 5 मिनट की टाइम है, 5 मिनट के अंदर आपको टाइप करना है जो आपने सीखा है इस 4 दिन के अंदर। तो इन इंग्लिश actually they will give only 5 minutes. Okay, they ask you to write what you have learned in these 4 days. ओके तो आपको 5 ही मिनट के अंदर ओपन करके लिखना है, टाइप करना है जो आपने क्या सीखा इस 4 दिन के अंदर। तो आपको ये भी आपको ये भी बोला जाता है कि आप इतना ही लिखा है और इतना ही आप सीखे और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। मुझे ये पूछा गया था, मतलब जो भी आपको जो वीडियोस आप सिखाते हो, वीडियोस वो दिखाते हैं और जो भी आपको पिछले राउंड होता है आपने क्या क्या सीखा, आप 5 मिनट के अंदर टाइप करना है, आपको बस 5 मिनट की टाइम है। तो ये सेकंड एक्टिविटी मतलब इस सेकंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी ये है सर, थर्ड एक्टिविटी जो आप एक सिनारियो सिलेक्ट करते हो ना सर पहले, तो उस सिनारियो के लिए आपको उस सिनारियो के लिए आपको सेल्स का पिच लिखना है। तो उस पिच लिखने के लिए भी आपको 5 मिनट की टाइम है। तो आपने जो पहले आपको 30 मिनट के अंदर जो 3 सिनारियोज आप चूज करते हो, उसी एक सिनारियो के लिए आपको पूरा सेल्स, मतलब जो आप घर में जाते हो, घर में जाने के बाद आप पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ कैसा आप पिच करोगे। तो आप वो बोलते हैं, मतलब आप इंटरव्यू बोलते हैं कि आप इमेजिन कर लो, आप कोई भी पेरेंट के साथ और बच्चों के साथ बैठे हो, आपके पास अभी सेल्स पिच लिखने के लिए 5 मिनट की टाइम है, 5 मिनट के अंदर आपको सेल्स पिच लिखना है, आप कैसा उनको कन्विंस करोगे। तो वो मुझे 5 मिनट में लिखना था, मतलब पूरा घर जाने के बाद। तो ये भी हुआ, ये भी हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी था, तो आपको एक सिनेरियो दी जाता है, मतलब एक फॉलो अप कॉल जैसा, मतलब वो इंटरव्यू आपको बोलता है, हाँ मेरा एक बीडीए है, वो एक्चुअली वो हेल्थ इश्यूज के लिए ऑफ है आज, तो आपको मैं एक फॉलो अप देता हूँ, मतलब उसका बीडीए से मतलब कोई अलग आदमी से मतलब जितिन से उसका बात हुआ है, लेकिन वो स्लॉट बुक नहीं हो पाया है मतलब काउंसलिंग के लिए। तो मैं नंबर दूंगा, उस नंबर को कॉल करो, उसको मतलब आप उसको स्लॉट बुक कर दो। ठीक है, ऐसा आपको बोला जाता है। ये मतलब आप समझ लो एक फॉलो अप की जैसा कॉल है। तो ठीक है, तो आपको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को आपको कॉल करना है आपका मोबाइल से। तो फोन कोई भी उठा देता, मतलब उठाता है, मतलब कोई जो बायजूस में ही है, तो वो उठा के आपको ऑब्जेक्शन देते हैं बहुत सारे। तो वो आपको चेक करते हैं कि आप कैसा बात करोगे, आपका सेल्स पिच कैसा है। तो वो सारे आपको एक्चुअली ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए बोलेंगे। तो आप कैसा फॉलो अप का जो लीड है, तो आप लीड लोगे, उसको आप कैसा स्लॉट बुक करोगे, तो आपको कन्विंस करना है फोन पे ही। तो ये भी आप याद रख लो, फोन भी कट हो सकता है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डायरेक्ट फोन काट देते हैं। तो यही लास्ट चीज है सर, यही मतलब पूरा टफेस्ट राउंड था, मतलब पूरा एक ही दिन में उसने 4 और 5 एक्टिविटी करा दी, पूरा बैक टू बैक। वो भी ये 5 मिनट टाइम देके या हाफ मिनट 30 मिनट 30 सेकेंड टाइम देके। ऑल राइट। सो अभी यही तुम हुआ था सर, बस इसके ये पूरा। इसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट, जो फाइनल फाइनल रिजल्ट जो आएगा आफ्टर 7 डेज या 10 डेज बाद आता है रिजल्ट, ठीक है। एंड आई होप कि महेश तुम्हारा काफी हाँ अच्छा सर। राउंड गया है, तो रिजल्ट जल्दी आए, ठीक है। सो गाइज, this is all about the ठीक है Byju's सर। Super Select program. If you feel any thing like if you feel you want to go through these activity, if you want to prepare all these activity, if you feel like you are nervous or you are not able to face interviews, so you can join our Vartalap community. We will guide you here. Okay, you can fill the form. Okay, so guys, don't forget to subscribe, like this channel. If you have any query or any doubt, you can just comment down in the comment section. Okay guys, best of luck for your career. We will come back with next video with a good news. Okay, so till then, bye bye guys, bye Mahesh. थैंक यू सर, मैं भी। Okay, bye bye बाय guys. सर।